Everyone, we have learned about preposition in a previous video. Now we will discuss more about it. Now we'll discuss the kinds of preposition, that is simple preposition, compound preposition and phrase preposition. Simple preposition when that is called a one word or single word preposition. For example, in, at, on, by, for, from, until, okay. And the compound preposition that are formed by modifying some other words. For example, across, amidst, between, besides, etc. And phrase preposition, these are formed by the group of words that convey a single idea. Okay, for example, according to. According to mean में according and to both are preposition and we are combining together to convey the meaning. Because of, again because is a preposition, of is a preposition, but we are combining here, so that is called phrase preposition. Let's discuss in detail. Children, here are different kinds of preposition. Discuss in detail. That is a preposition of time. First is at. At is used the point of time, means when fixed time is given, then we use at. For example, the train will leave at station at 5:30 p.m. 5:30 is the exact time given, that's why we have used at. On is used with the days and dates. Okay, for example, the market will be closed on Sunday, means the days of the week, Sunday, Monday, Tuesday, on when special days, for example on Independence Day, on Monday evening, on Friday night. Okay, so we have to use on with the days and dates. Next one is for. For is used when we have to express a period of time. It is used with the all tenses. For is used with all tenses and also describe the period of time. Period means कि कोई duration, कोई भी काम कितने टाइम तक चला. I have been working in the office for 15 years, कि 15 years तक उसने वहाँ पे काम किया. So duration यहाँ पे बताया जा रहा है कि कितने टाइम तक ये काम चलता है. So then we have used for. Since is used to express the point of time. It is generally preceded by the verb which is some perfect tense. Since में ज़्यादातर हम perfect tense में use करते हैं and that is also express the point of time, means exact time दिया हुआ है, then we have to use it. Okay, he has been living in that house since 2016. 2016 से लेके अभी तक वो वहाँ पे रह रहा है. ठीक है. From and to, ये हम दोनों साथ में यूज करते हैं, from and to and till. Generally from is used to denote the starting point, okay, and of the action and mostly used the combine with the to or till. ज़्यादातर from को to के साथ या till के साथ combine किया जाता है. okay, and ये starting point बताता है किसी भी action का. Used with the period of time, parts of the day, month, years, season. For example, in May, in 2017, in summer, in winter, means parts of the day और मंथ्स के साथ, ईयर्स के साथ, और जब सीजन्स की बात हो रही है तो उसके साथ हम कौन सी preposition यूज करेंगे? इन. नेक्स्ट वन इज बाय. बाय इज यूज टू कन्वे द मीनिंग नॉट लेटर देन, मीन्स कि फिक्स टाइम दिया है उससे लेट नहीं. ठीक है. देन वी हैव टू यूज बाय कि वो एग्जैक्ट टाइम हमें दिया गया है उससे लेट नहीं कोई एक्शन हुआ तो. द मैच विल बी ओवर बाय 5 PM. 5 PM का एग्जैक्ट टाइम दिया है तो दिस एक्सप्रेस दैट द मैच में फिनिश बिफोर 5 PM एंड एट लास्ट नॉट लेटर देन 5, कि 5 PM के से पहले ये काम कंप्लीट होगा. देन यू हैव टू यूज बाय. नेक्स्ट इज बिफोर एंड आफ्टर. वी यूज बिफोर टू डोनेट द पॉइंट ऑफ फ्यूचर टाइम. ठीक है. इट इम्प्लाइज एक्शन टेकिंग प्लेस एंड द अर्लियर टाइम. ठीक है. ये वाला जो टाइम दिया गया है, जो कोई भी टाइम दिया गया है उससे पहले कोई एक्शन कंप्लीट होता है तो हम बिफोर यूज करेंगे. ओके. देन वाइल आफ्टर इज यूज टू एक्सप्रेस द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. इन द पास्ट. और आफ्टर जब हम पास्ट की कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसमें एंड ऑफ द पीरियड के एंड तक जो यूज़ किया गया है एक्शन डिस्क्राइब करेंगे. देन वी हैव टू यूज आफ्टर. डिस्कस द preposition ऑफ प्लेस. फर्स्ट इज एट. एट इज यूज टू एक्सप्रेस एग्जैक्ट लोकेशन और स्मॉल एक्सटेंड ऑफ स्पेस. छोटे छोटे जो सिटी हो गई, शहर हो गए, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? एट. ठीक है. हिज ऑफिस इज एट 11 ब्रिगेड रोड. ठीक है. जो लोकेशन है छोटे छोटे सिटीज़ की, शहर के, उसके साथ हम एट यूज़ करेंगे. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, इन इज यूज टू एक्सप्रेस द वाइडर एक्सटेंड ऑफ स्पेस एंड स्टेट इन अ रेस्ट ऑफ इंटीरियर ऑफ एनीथिंग. ठीक है. कि कोई बड़ी जगह, बड़ी सिटी, बड़ी शहर का, बड़ी कंट्री का नाम है अगर आता है तो उस वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? इन. हिज बर्थडे पार्टी वॉज एट होटल ताज इन दिल्ली. ठीक है. तो बड़े शहर का नाम है तो इन यूज़ करेंगे. Next one is on. On to express the location of object that rest in upper surface of something.
ऑन हम यूज़ करते हैं व्हेन समथिंग इज़ ऑन द सरफेस ऑफ अदर थिंग, ओके, कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर है तो हम ऑन यूज़ करेंगे, ओके। दैट इज़ रेस्ट इन मूड, ठीक है, जो रेस्ट पोजीशन में है। द ट्रेन रन्स ऑन द रेल्स, ठीक है, रेल्स के ऊपर ट्रेन वो चल रही है। द नेक्स्ट वन इज़ above is used to express the position that higher in relation of something, ठीक है, कि जो ऑन होता है ऊपर, तो above का हम यूज़ करेंगे कि कोई चीज़ ऊपर है, ठीक है, उस सर्टन लेवल के ऊपर। द ग्रैंडफादर्स पिक्चर हैंग अबव द फायर प्लेस, ठीक है, किसी सरफेस के सतह से ज़्यादा ऊपर कोई चीज़ है तो उसके हम यूज़ करेंगे अबव। नेक्स्ट बेटा हम डिस्कस करेंगे ओवर कैन ऑल्सो बी यूज टू इंडिकेट समथिंग that higher in position and cover something or indicate something crossing over the moving to inside, मीन्स कि कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर एट हायर पोजीशन पे है और उसको कवर कर रही है, देन वी यूज़ ओवर। द फैन जस्ट ओवर हर हेड, ठीक है, जो फैन उसके सर के बिल्कुल ऊपर है। नेक्स्ट इज बिलो इज यूज टू इंडिकेट अ पोजिशन दैट इज लोअर, ओवर अगर ऊपर है तो बिलो आएगा नीचे, ठीक है। हिज अपार्टमेंट इज जस्ट बिलो आर्स, ठीक है, उसका अपार्टमेंट हमारे अपार्टमेंट्स के बिल्कुल नीचे है, ठीक है, बिलो मीन्स नीचे। अंडर इज यूज टू एक्सप्रेस लोअर पोजीशन, अंडर होता है कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के अंदर, ठीक है, नीचे। द ट्रेवलर हैड टू रेस्ट अंडर अ ट्री ऑन द सनी आफ्टरनून, ठीक है, जो ट्रेवलर्स हैं उनको रेस्ट किया उन्होंने, ठीक है, ट्रीज के नीचे, आफ्टरनून के मतलब कि ट्री के नीचे। अंडर यूज व्हेन यू डिस्क्राइब समथिंग बिलो द अदर थिंग। नेक्स्ट इज बिहाइंड इज द बैक ऑफ समथिंग और समवन, ठीक है। द हाउस इज जस्ट बिहाइंड द टेम्पल, ठीक है, कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के पीछे है, देन वी हैव टू यूज बिहाइंड होता है पीछे। ऑपोजिट मीन्स ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग, फॉर एग्जाम्पल देयर इज द ब्यूटिफुल पार्क ऑपोजिट माई हाउस, मीन की बिल्कुल उसके सामने। नेक्स्ट इज इन फ्रंट ऑफ इंडिकेट द पोजीशन दैट इज जस्ट अहेड और इन फ्रंट ऑफ समथिंग, बिल्कुल सामने की अगर कोई चीज़ है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इन फ्रंट ऑफ। ही पार्क्ड हिज कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट, बिल्कुल सामने, ठीक है। नेक्स्ट इज बिटवीन यूज देयर इज अ टू पर्सन और थिंग और आइडिया, दो चीज़ों की, दो पर्सन की अगर बात कर रहे हैं, बीच की बात कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे बिटवीन। नेक्स्ट वन इज अमंग, दो जानों की बात हो रही तो बिटवीन। मोर देन टू, देन वी यूज मोर देन टू थिंग्स और पर्सन, अगर दो से ज़्यादा की बात हो रही है तो हम यूज़ करेंगे अमंग। बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ, मीन्स कि पास में लेकिन उसके साइड में, तो हम यूज़ करेंगे बिसाइड। फॉर एग्जाम्पल शी केम एंड सेट बिसाइड मी, मेरे पास में बैठ गई, ठीक है। बिसाइड यहाँ पे बिसाइड का मतलब है पास में, यहाँ पे बिसाइड है इसके अलावा, मीन्स कि इसके ज़्यादा एडिशन, अगर हम किसी और चीज़ की बात करते हैं, पॉइंट की बात करते हैं, देन द मीन्स इन एडिशन ऑफ समथिंग, मीन्स कि इसके अलावा और कोई पॉइंट। बिसाइड द कैश द रॉबर टुक इज बाइक, ठीक है, कैश के साथ साथ जो रॉबर है वो बाइक भी ले गए, ठीक है। बिसाइड यहाँ पे है पास में, नियर, और बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन, उसमें कुछ और ऐड कर। नेक्स्ट बेटा प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शंस। टू इज यूज टू कन्वे द सेंस ऑफ डेस्टिनेशन, मीन्स की डेस्टिनेशन बताई जा रही कि कौन सी जगह पे हमने पहुंचना है, ठीक है। तो ही वेंट टू द मार्केट टू बाय मिल्क, कहाँ जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, ओके। तो सेंस ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है, किसी जगह पे पहुंचने तक का, देन वी यूज टूवर्ड्स इज यूज टू एक्सप्रेस डायरेक्शन और इंडिकेट, ठीक है। टूवर्ड्स होता है कि किसी जगह पे हम जब जा रहे हैं तो उसकी डायरेक्शंस को शो करना कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ही रन टूवर्ड्स द स्कूल, वो कहा किस तरफ जा रहा है, स्कूल की तरफ। नेक्स्ट इज इनटू टू एक्सप्रेस द स्टेट ऑफ मोशन टूवर्ड इंटीरियर और समथिंग ऑन साइड, कोई चीज़ अंदर है लेकिन उसमें मोशन है, मूवमेंट है, देन वी यूज इनटू। ही जम्प्ड इनटू द पूल में वो चला गया, ठीक है, मोशंस हो रही है, मूवमेंट हो रही है, देन वी हैव टू यूज इनटू। अंगेस्ट इज टू एक्सप्रेस द ऑपोजिशन ऑफ सम काइंड, टू क्लोज टू टचेज और हिटिंग समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ के ऑपोजिट की अगर बात करें। द गर्ल वॉज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, कि जो गर्ल है वो वॉल के बिल्कुल अंगेस्ट उसके साथ क्लोज खड़ी है, या उसको अंगेस्ट उसके खड़ी है, ठीक है, देन वी हैव टू यूज अंगेस्ट। अक्रॉस इज टू कन्वे द मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू द अपोजिट साइड, ठीक है। ही रन अक्रॉस द रोड इन द गेस्ट रूम, ठीक है, तो मूवमेंट हो रही है तो वन साइड ऑफ द ऑपोजिट, दूसरी साइड के ऑपोजिट, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज अलॉन्ग, मूव्ड बाय द साइड ऑफ पाथ, की ये होता है ऑपोजिट साइड अक्रॉस यूज करते हैं, और अगर हम सेम साइड की बात करें कि सेम साइड पे कोई चल रहा है, ठीक है, तो हम यूज करें अलॉन्ग, ओके, मूवमेंट हो रही है लेकिन सेम साइड ऑफ द पाथ।
आई वॉकड अलॉन्ग द कैनल फॉर सम टाइम, ठीक है, कि मैं उसके पास कैनल के पास में मैं वॉक करती हूँ सम टाइम, ठीक है, पास में, अक्रॉस मीन्स ऑपोजिट, यूज टू इंडिकेट द एजेंट ऑफ एक्शन, सोर्स एंड द डूरर, ठीक है, कोई काम किसके द्वारा किया गया है, देन वी हैव टू यूज बाय, ओके। फॉर एग्जाम्पल द केस वॉज सॉल्व बाय द पुलिस, पुलिस ने केस सॉल्व किया, किसके द्वारा किया गया, पुलिस के द्वारा, तो बाय, ठीक है, वी हैव टू यूज बाय देयर, ठीक है, एजेंट के जिसने एक्शन किया। विद इज यूज टू इंडिकेट द ऑब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंट, कि जिस चीज़ के साथ, जिस ऑब्जेक्ट के साथ एक्शन हुआ है, देन वी हैव टू शो विद, ठीक है, विद हमें दिखाना है कि विद किसी चीज़ के साथ हुआ है। ही मोड द ग्रास विद द न्यू मोवर, ठीक है, ग्रास किसका रिमूव किया गया, मोर के साथ, न्यू मोर के साथ, तो विद, ओके। इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे एक्शन जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ हुआ, देन वी हैव टू यूज विद। फ्रॉम इज यूज टू इंडिकेट द पॉइंट ऑफ डिपार्चर और रीजन ऑफ समथिंग और समथिंग, ओके। फ्रॉम यहाँ पे क्या कर रहा है, इंडिकेट द पॉइंट ऑफ डिपार्चर टाइम, ठीक है, टाइम का जहाँ पे जब जाने का टाइम, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए। पंजाब मेल स्टार्ट फ्रॉम फिरोजपुर एट द 9:40 PM, ठीक है, तो फ्रॉम मीन्स हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कि देते स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑफ, ऑफ टू इंडिकेट सम सेपरेशन फ्रॉम अ सरफेस और डाउन और अवे, द राइडर फेल ऑफ द, ठीक है, सेपरेशन ऑफ द सरफेस, किसी चीज़ से दूसरी जगह, सरफेस से कोई चीज़ दूसरी जगह पे रिमूव होना, जब हटना, देन हम यूज़ करेंगे ऑफ। द राइडर फेल ऑफ द हॉर्स, जो हॉर्स के ऊपर से राइडर गिर गया, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ऑफ। नेक्स्ट वन इज ओ एफ, ओ एफ इज एक्सप्रेस अ बिलोंगिंगनेस एंड रिलेशन और रीजन ऑफ प्रोसेशन। द हाउस इज मेड ऑफ वुड, ठीक है, जो हाउस है किसके साथ बना है, वुड के साथ, ये बिलोंगिंगनेस शो करता है, रिलेशन शो करता है, रीजन बताता है, पोसेशन बताता है, ठीक है, दैट्स वाई वी यूज ऑफ। ही डेड ऑफ कैंसर, किसकी वजह से मरा वो, कैंसर की वजह से, तो ये रीजन है ऑफ यहाँ पे। आउट ऑफ, टू इंडिकेट द मोशन फ्रॉम इनसाइड and interior of something or opposite of into. She went out of the classroom, indicate a motion from inside or interior of something, ठीक है, किसी चीज़ के अंदर के बीच में जो मोशन हो रहा है वो उसको दिखाना। He went out of the classroom, ठीक है, वो क्लास से बाहर चला गया। नेक्स्ट वन इज थ्रू, टू इंडिकेट क्रॉस द इंटीरियर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का दूसरी चीज़ के बीच में से गुजरना, ठीक है, मीन्स वाया समथिंग, ओके। फॉर एग्जाम्पल ही पास्ड थ्रू द मेन एंट्रेंस, वो मेन एंट्रेंस के बीच में से निकला, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया थ्रू, किसी चीज़ का दूसरी जगह से बीच में निकलना, देन वी यूज्ड थ्रू। माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट preposition. Now read this exercise and give answer in comment section. Thank you for watching.